as well as we have here organic chemistry and inorganic compounds. So what it means, analytical chemistry is a branch of chemistry where we are dealing with separation, identification, and quantifying the amount of substances or elements present in a given matter or given substance. That is what we are here. What is the importance of this analytical chemistry? So analytical chemistry has the wide applications in agriculture industry, medicines, pharmacology, as well as engineering industry, chemical industry, fertilizer industry, many more. So it has wide applications. This chemistry has the classical methods. The analytical chemistry has some classical methods, classical tools, as well as some weight methods, and we have updated instruments. जिसके बारे में मैंने बताया कि आज हम लोग मैंने एग्जांपल दिया है हम ऑक्सीमीटर घर में यूज करते हैं दैट इज आल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एनालिटिकल टूल व्हाट वी आर यूजिंग इंस्ट्रूमेंट व्हाट वी आर यूजिंग सो इंस्ट्रूमेंट से लेकर क्लासिकल तक कई सारे मेथड्स उसके अंदर आते हैं और व्हेन इट डील्स विद एनालिसिस इन एनालिसिस वी आर डीलिंग विद वेरी स्मॉल क्वांटिटी of the given substance or matter, or you can say sampling of the matter. So when we are dealing with a few grams of substance, that is called as a semi-micro analysis. That is what we are seeing here. So we take a few grams of the sample of the substance and we analyze that in the laboratory. We perform some experiment, we have some observations, and we present some data. Analytical chemistry mainly dealing with qualitative and quantitative analysis. Qualitative analysis means we have to find out which elements are present, which chemical composition is present in a given matter or given substance. That means that is nothing but the qualitative analysis. And quantitative analysis means the how much quantity of that particular element is present in a given substance. That refers to the quantitative analysis. So we have seen chemical methods of qualitative analysis. We have seen chemical methods of quantitative analysis as well. These methods are different for organic compounds. These methods are different for inorganic compounds. We have also seen organic compounds are the compounds which mainly consist of carbon combined with hydrogen, oxygen, nitrogen, phosphorus, sulfur, etc. And in rest all other compounds are inorganic compounds. और दोनों compounds को separate करने का, identify करने का और quantify करने का तरीका अलग है. तो दोनों के लिए analytical methods अलग use किए जाते हैं जिसके बारे में हमने बात की है already. Also we have seen in analytical chemistry we are dealing with some mathematical operations, some mathematical presentations, and we counter with some errors. What are these mathematical notations, operations, and what are the errors what we commit? That is also what we have discussed here in this chapter. We have first seen the scientific notation, that is n into 10 raised to n. So Avogadro's number is presented like this one. Joule's Planck's constant is also presented here in that manner. 6.022 into 10 raised to 23 is one of the example of scientific notation. Avogadro's number. Furthermore, also we have seen we have addition, subtractions, and multiplication of this scientific notations. So what the laws, what the basic mathematical laws are applied over there, that is also what we have seen here in this chapter. Furthermore, we have seen here, that is, you can say, what is the precision and what is the accuracy. So in order to have the true value, in order to have the right value, we should have the more accurate readings, and we have to go for the precise readings. And there, whatever the mistakes we make, that mistakes are measured in the errors, and that's why we have the absolute error as well as we have the relative error. So absolute error has the formula, that is, you can say observed value minus true value is absolute error. And what is relative error? That is absolute error divided by true value into 100 is your relative error. Also, we have seen precision. High precision is a prerequisite for accurate readings or higher accuracy of the readings. जितना precise आपका reading होगा, जितना precise आपका observation होता है, उतना ही accurate आपका measurement होता है. True value की तरफ हम लोग जाते हैं. But precision is measured or expressed in terms of deviation. So deviation is again expressed in two forms. That is, you can say absolute deviation and relative deviation. So absolute deviation is a modulus of difference of observed value minus mean, arithmetic mean of all the values. Because precise reading के लिए हम लोग maximum readings लेते हैं और उसका mean उसके अंदर आ जाता है. So absolute deviation is the modulus mathematics के अंदर देखा होगा, modulus of difference of observed value minus mean. And what is the relative deviation? Relative deviation is nothing but the absolute deviation divided by mean into 100. That is what we have to see. Furthermore, we have one next part, that is nothing but you can say here significant figures. Hannah, the other was not able to recall what are the significant figures. So significant figures, when we are presenting the notations, when we are presenting the scientific data, that has to be presented in the proper values. So significant figures in observations or while putting the results combines or have the combination of a certainty, values with certainty, digits with certainty, and some of the digits with uncertainty. That is nothing but the significant figures. So here
most of the answers, most of the results are presented in the format of significant figures. In order to have the least count, in order to have the accurate reading, that least count has to be there. And if we are going towards the least count, then the answer has to be presented to the significant figures, जिसके अंदर हमारा readings और हमारा answer ज्यादा close होता है, ज्यादा accurate होता है, isn't it, है ना? So जैसे हमने बोला कि 10 ml आपको लेना है, तो 10 ml लेना है, तो ये 10 ml 0.1 भी हो सकता है, 9 ml 0.9 भी हो सकता है. So more accuracy. ट्रू वैल्यू हमारा 10 है, बट हम 9.9 भी ले सकते हैं या 10.1 भी ले सकते हैं. हम उसके अंदर वो कैलिब्रेशंस कितना है इंस्ट्रूमेंट के ऊपर, उसके ऊपर डिपेंड करेगा. सो दैट इज आल्सो व्हाट वी आर सीइंग द सिग्निफिकेंट फिगर. सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर कैसे लिए जाते हैं, कौन से फिगर सिग्निफिकेंट होते हैं, उसके बारे में रूल्स है, बुक के अंदर क्लियरली लिस्टेड है, मेंशन है. यू कैन रीड द बुक आल्सो. मैंने कल स्टेट किया था, ऑल नॉन जीरो फिगर्स आर सिग्निफिकेंट फिगर्स. All zeros between many figures are again here significant. All the zeros on the left hand side are here non-significant. All zeros on the right hand side are significant, like that. ये सारे रूल्स हमने कल उसके अंदर डिस्कस किए थे. दैट इज आल्सो व्हाट वी आर सीइंग. एंड आफ्टरवर्ड्स वी आर सीइंग लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, कल के लेक्चर में, दैट वाज नथिंग बट द मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला. तो मॉलिक्यूलर फार्मूला हम लोग 5th स्टैंडर्ड से देखते आए थे, और हमने ये देखा कि सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूलर फार्मूला H2SO4 है. इसका मतलब है सल्फ्यूरिक एसिड्स के अंदर 3 एलिमेंट्स आते हैं, हाइड्रोजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन आते हैं. और किसके कितने एटम्स आते हैं ये भी आता है, मतलब कौन से एटम्स है, कौन से एलिमेंट्स है, और उसके कितने एटम्स है, ये दोनों चीजें आती है. क्वालिटी एंड क्वांटिटी. व्हिच एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इज द क्वालिटी, हाउ मच क्वांटिटी इज प्रेजेंट, दैट इज द क्वांटिटी. सो दैट इज द एक्चुअली हियर यू कैन से मॉलिक्यूलर फार्मूला. तो डेफिनेशन अगर हमें पूछा जाता है, हमें लिखना है, तो molecular formula gives the actual number of atoms of various element present in a molecule of compound is called as, you can say, molecular formula. Actual number of atoms of various element is called as a molecular formula. Or as I said, this stated, we know it very well. What is empirical formula? It is the simplest ratio of atoms of various element present in a molecule of compound is called as a empirical formula. तो कल बेंजीन का एग्जांपल आपको दिया था. C6H6 is a molecular formula of benzene. And CH is an empirical formula of benzene. That is also what we are seeing. ये हमने कल के लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था. Now कल के लेक्चर में हमने ये लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था, how to determine the empirical formula. उसके अंदर कुछ स्टेप्स थे, ठीक है. So this is the doubt what Athav has, मतलब he didn't got that topic well. और मैंने कल सिखाते समय भी ये कहा था कि theoretically भी when I am delivering this topic, ये टॉपिक समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है. If I deliver this topic with the example, that will illustrate more, that will explore this topic very well. ठीक है. तो अदर what I will do, आज हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं टॉपिक के साथ, और at the end of this chapter will come down to the come again to the numericals. और empirical formula के numerical जब हम सॉल्व करेंगे तो उसके अंदर क्लियर समझ में आएगा, क्योंकि उसके अंदर 4 ही स्टेप्स तो है. स्टेप नंबर 1 ये है कि हमें जो न्यूमेरिकल दिया जाएगा उसके अंदर जितने एलिमेंट्स दिए उसके सबके परसेंटेज दिए जाएंगे. सो सारे परसेंटेज को हम लोग ऐड करेंगे, पहला स्टेप. और सबका परसेंटेज अगर इक्वल टू 100 है तो ऑक्सीजन इज एब्सेंट. अगर सबका परसेंटेज 100 नहीं है तो रिमेनिंग इज ड्यू टू ऑक्सीजन. ये उसके अंदर क्लियर होता है. ये पहला स्टेप है. दूसरे स्टेप में व्हाट एवर द परसेंटेज गिवन टू अस, दिस परसेंटेज विल बी कन्वर्टेड टू मास, दैट इज इन ग्राम, वेट में कन्वर्ट करेंगे. तो जैसे मैंने कल बताया था कि 4.67% अगर कार्बन का दिया है तो उसे हम करेंगे 4.67 ग्राम ऑफ कार्बन. ऐसा करेंगे क्योंकि परसेंटेज हमेशा 100 के साथ होता है, तो वेट भी 100 के साथ ही कंपेयर करेंगे. तो 100% के अंदर 4.67% है, तो 100 ग्राम के अंदर 4.67 ग्राम होगा, ऐसा उसका मतलब है. तो परसेंटेज इज डायरेक्टली कन्वर्टेड टू ग्राम. परसेंटेज को हटा दीजिए, वहां पे ग्राम लगा दीजिए, बन जाता है काम. सिंपली अंडरस्टैंडिंग और याद रखने के लिए. उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, तीसरा बात होती है वी हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स. और नंबर ऑफ मोल्स हमें अगर कैलकुलेट करना है तो उसके लिए क्या करना होता है कि वेट ऑफ दैट एलिमेंट डिवाइड बाय एटॉमिक वेट ऑफ दैट एलिमेंट. जितने एलिमेंट हमारे पास है उस न्यूमेरिकल के अंदर 2 3 4, तो उस न्यूमेरिकल का एटॉमिक दिया हुआ वेट डिवाइड बाय उसका एटॉमिक वेट, उससे मिलेंगे नंबर ऑफ मोल्स. फिर उसके बाद होगा सिंपलेस्ट रेशियो. सो नंबर ऑफ मोल्स ऑब्टेन विल बी डिवाइडेड बाय अ स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल्स. स्टेप में जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर मिला है उससे सबको डिवाइड करेंगे, वो हम लोग को सिंपलेस्ट नंबर ऑफ मोल्स मिलेंगे. और फिर उसको राउंडिंग ऑफ करना है. विल राउंडिंग ऑफ विल कन्वर्ट देम इनटू द नियरेस्ट होल नंबर. मतलब अगर हमारे पास 4.7 है तो उसे 5 में कन्वर्ट करेंगे. हमारे पास 4.3 है तो उसे 4 में कन्वर्ट करेंगे. सिग्निफिकेंट फिगर्स का राउंडिंग ऑफ हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, तो उससे हम लोग राउंडिंग ऑफ करेंगे. एंड देन लास्ट में विल राइट डाउन द सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स. विल राइट डाउन द सिंबल ऑफ एलिमेंट, जैसे कि C फॉर कार्बन, N फॉर नाइट्रोजन, H फॉर हाइड्रोजन. एंड उसके राइट सफिक्स में उनके सिंपलेस्ट रेशियो के नंबर ऑफ मोल्स वहां पे लिखेंगे जो हमने राउंडिंग ऑफ करके बनाया था, वो वहां पे लिखेंगे. उससे हम लोग को मिल जाता है इंपिरिकल फॉर्मूला.
और इंपेरिकल फॉर्मूले के बाद वी कैन फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला टू अगेन, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के लिए हमारा फॉर्मूला ये था, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू R इनटू इंपेरिकल फॉर्मूला, और R इज अ स्पेसिफिक इंटीजर, और R कैसे निकालना है तो उसके लिए भी देखा था हमने कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट अपॉन इंपेरिकल फॉर्मूला वेट विल गिव यू द वैल्यू ऑफ R। R से इंपेरिकल फॉर्मूला को मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोगों को मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल जाएगा, isn't it? अब ये 100% मैं आपको बता रहा हूँ कि जब हम इसका न्यूमेरिकल लेंगे वो सबको बहुत अच्छी तरह समझेगा। इट्स वेरी इजी, स्टेप्स है, स्टेप्स फॉलो करने हैं। हमें जो बताया बस परसेंटेज ऐड करना है, सबका वेट ग्राम में लेना है, सबके नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, सबके मोल रेशो निकालना है, सिंपलेस्ट रेशो कन्वर्ट करना है, राउंडिंग ऑफ करना है, एलिमेंट के सिंबल लिखने हैं और राइट सफिक्स में उसके नंबर ऑफ मोल्स लिखने हैं। ठीक है, थियोरेटिकली इजी है, लेकिन न्यूमेरिकल के साथ बहुत अच्छी तरह और भी आपको एक्सप्लोर होगा और समझेगा, आई गारंटी यू। तो चलते हैं अभी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम लोग। After the empirical formula, we are turning to the next topic, and the next topic is nothing but the stoichiochemistry, stoichiometry or stoichiochemistry. So stoichiometry is very important branch of chemistry. So let's move to the next topic, that is called stoichiometry or stoichiochemistry. Stoichiometry is a very important concept in the chemistry, or basic, it's a very fundamental concept in the chemistry. अब देखिए आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको सिखाया जा रहा है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग रिएक्शन देखते हैं, कार्बन रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू फॉर्म मीथेन, ये रिएक्शन देखते हैं, या फिर मीथेन क्रिएटेड विद HCl प्रोड्यूसेस मिथिल क्लोराइड, लाइक दैट, ये रिएक्शन आप देखते हैं यहाँ पे। बट एक खास बात है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन लिखना पड़ता है, बैलेंस केमिकल रिएक्शन। अगर हम बैलेंस केमिकल रिएक्शन नहीं लिखेंगे तो रिएक्टर और प्रोडक्ट मैच नहीं होंगे। सो व्हाटएवर द नंबर ऑफ atoms of reactant on the left side should be balanced with number of atoms on the right hand side. ये दोनों एक दूसरे के साथ बैलेंस होने चाहिए, ठीक है। और उसे कहते हैं राइटिंग द बैलेंस केमिकल रिएक्शन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन उसे कहा जाता है, isn't it? Stoichiometry is all about that. Stoichiometry is all about that. Stoichiometry का मतलब भी वही है। Stoichiometry is a branch of chemistry which deals with the quantitative relationship between reactant and product. क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, रिएक्टेंट के अंदर और प्रोडक्ट के अंदर क्या क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है, ये बताने वाला जो केमिस्ट्री उसे हम लोग स्टोइचियोकेमिस्ट्री ऐसा कहते हैं, स्टोइचियोमेट्री ऐसा कहते हैं। देखिए छोटा सा H2 प्लस Cl2 प्रोड्यूसेस HCl, ये रिएक्शन तो आप बचपन से देखते हैं। हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद क्लोरीन टू फॉर्म हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बट डू यू थिंक दैट दिस रिएक्शन इज अ बैलेंस केमिकल रिएक्शन? डू यू थिंक दैट दिस इज अ बैलेंस केमिकल रिएक्शन? No. Yeah, yes. No. It is not a balanced chemical reaction. अब देखिए ना, एरो के इस तरफ का पार्ट रिएक्टेंट कहलाता है, एरो के इस तरफ का पार्ट प्रोडक्ट कहलाता है ना। और एरो बताता है कि रिएक्शन इस डायरेक्शन में जा रहा है, एरो बताता है कि इस डायरेक्शन रिएक्शन में, मतलब ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। रिएक्शन पढ़ने का भी तरीका देखिए, दिस आर द रिएक्टेंट, दिस इज द प्रोडक्ट। एरो बताता है कि ये रिएक्टेंट इस पे कन्वर्ट होते जा रहा है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन इस डायरेक्शन में जा रहा है। हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद क्लोरीन टू फॉर्म HCl, ये रिएक्शन, but this reaction is not a balanced chemical reaction. अब देखिए, number of atoms of hydrogen are 2, H2, मतलब there are 2 number of atoms of hydrogen, Cl2, मतलब there are 2 number of atoms of chlorine, और here देखेंगे तो HCl, only one hydrogen atom, only one chlorine atom. This is not a balanced chemical reaction. Unless and until I write here 2, it won't. अभी अगर मैं यहाँ पे 2 लिख देता हूँ तो ये रिएक्शन अभी बैलेंस बन गया। अभी इसके अंदर देखिए, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एटम है, ये 2 हाइड्रोजन एटम हो गए, यहाँ पे 2 क्लोरीन है, यहाँ पे भी 2 क्लोरीन हो गए, ये 2 दोनों को अप्लाई होता है, हाइड्रोजन को भी और क्लोरीन को। लेफ्ट साइड भी लिखा जाता है, जो कोएफिशिएंट होता है वो सबको अप्लाई होता है, और राइट साइड में जो लिखा जाता है सिर्फ उसी पे अप्लाई होता है। अभी Cl2 सिर्फ क्लोरीन को है ना, जैसे कि हम लोग ऐसा लिखते हैं, देखिए PbCl2, तो PbCl2 के अंदर ये जो 2 होता है ये सिर्फ क्लोरीन को अप्लाई होता है, ये 2 Pb को नहीं होता। हाँ, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2, ये 2 Pb को भी होता है, 2 Cl को भी होता है। हाँ, ये भी आप शायद अच्छी तरह जानते हो, बट इट्स वेरी फंडामेंटल, आपको समझना है। सो इन दैट सेंस यू कैन से हियर, नाउ दिस इज द बैलेंस केमिकल रिएक्शन। अभी इसका मतलब ऐसा होता है कि हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ रिएक्ट होकर हाइड्रोजन क्लोराइड तैयार होता है, ये तो बात ठीक है, लेकिन कितना हाइड्रोजन कितने क्लोरीन के साथ रिएक्ट होकर कितना हाइड्रोजन क्लोराइड तैयार करता है, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। क्वांटिटी एंड क्वालिटी, किसके साथ कौन रिएक्ट होकर क्या तैयार करता है और कितने क्वांटिटी में रिएक्ट होकर कितनी क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट तैयार होती है, दोनों चीजें इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। दैट्स व्हाई वी आर स्टडीइंग एनालिटिकल केमिस्ट्री, क्वालिटी एंड क्वांटिटी बोथ। Stoichiometry is a branch of chemistry where we are dealing with the quantitative relationship between reactant and product. ये दोनों के अंदर का quantitative relationship हम लोग डिस्कस करते हैं, and that is the part of stoichiometry or stoichiochemistry. अभी देखिए,
स्टोइकियोमेट्री में ये जो रिएक्शन है इसके आगे जो दिखते हैं यहाँ पे, these are called as stoichiometric coefficient. These are called as stoichiometric coefficient. ये कोएफिशिएंट होते हैं, stoichiometric coefficient कहा जाता है। अभी हाइड्रोजन के आगे कुछ नहीं मतलब 1 होता है, क्योंकि हम जानते हैं मैथ्स में हम लोग x लेते हैं। मैथ्स में कुछ भी चीज आपको कैलकुलेट करने तो आप उसे x मानते हो, है ना? लेट इट बी एज x, तो ये x हो गया। बट हम हमेशा x को 1x मानते हैं ना, x इज ऑलवेज 1x, ये हम लोग 1x लिखते हैं। दो 1x होने के बाद हम उसे सिर्फ x ही लिखते हैं, तो 1 वहां पे होता ही होता है, वो हर चीज में कोएफिशिएंट होता है। तो वैसा हर रिएक्शन में जहां पे कुछ नहीं होता वहां पे 1 यहाँ पे होता ही होता है। तो इसका मतलब है यहाँ पे स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पे स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, और यहाँ पे स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है, जो ऑलरेडी है। जहाँ पे है वो जितना है उतना ही है, तो यहाँ पे ऑलरेडी 2 है। तो इस रिएक्शन में HCl के आगे 2 है, मतलब स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 बता रहा है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है। तो देखिए, here is 1, here is 1 and here is the 2. So this is actually the ratio of the reaction. This is the quantitative relation of the reaction. That is, this 1 can be represented in the format of number of moles. ये पहला रूल है। This one can represent mass. तीसरा, this can represent volume. This can represent volume. Substance कौन से फॉर्मेट में लिया है उसके ऊपर डिपेंड करता है। So reaction के अंदर जो stoichiometric coefficient है, this stoichiometric coefficient mainly represent करते हैं number of moles, mainly represent करते हैं number of moles, but they also can represent mass, that is in gram, weight. Then you can say that is also, you can say volume. They can also represent the volume. तो इसे हम लोग उस किसी भी फॉर्मेट में ले सकते हैं। जनरली वो नंबर ऑफ मोल्स रिप्रेजेंट करते हैं। तो रिएक्शन को पढ़ने का तरीका ऐसा है स्टोइकियोमेट्री के अंदर, स्टोइकियोमेट्री के अंदर, 1 mole of hydrogen reacts with 1 mole of chlorine to produce 2 moles of HCl. This is the only correct way to read the chemical reaction. Hope so everyone getting it. When we are dealing with the reactions, 1 mole of hydrogen, mole, this mole is the unit to measure the amount of substance. है ना? शायद तुम्हें से जो लोग सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन केमिस्ट्री नाम का चैप्टर जब सिखाया था तब नहीं थे, तो शायद वो ये मोल कॉन्सेप्ट को नहीं जानता है। बट मोल इज वेरी इंपॉर्टेंट। जिस तरीके से हम लोग दुकान में जाके 1 kg का शुगर लेते आते हैं, तो kg इज अ यूनिट टू मेजर द अमाउंट ऑफ शुगर। 1 लीटर मिल्क लेके आते हैं, लीटर इज अ यूनिट टू मेजर द अमाउंट ऑफ मिल्क। उसी तरीके से केमिस्ट्री में हम जब सब्सटेंसेस मेजर करते हैं, तो केमिस्ट्री में मोल नाम का यूनिट बहुत मैटर करता है ना? इट इज यूनिट ऑफ 7 फंडामेंटल यूनिट्स है, उसमें से मोल एक यूनिट है। There are 7 fundamental units, है ना? derived units से fundamental units 2 होते हैं, तो उसमें से mole is a very fundamental units that you know some basic concept में था। जिनका नहीं था उन्हें रिवाइज करना पड़ेगा, जो थे वो रिकॉल करें। So in that sense, mole is a unit to measure the amount of substance, और generally ये mole represent करता है। So reaction कैसे पढ़ेंगे? 1 mole of hydrogen reacts with 1 mole of chlorine to produce 2 moles of HCl. 2 moles of HCl, इसका मतलब ये होता है, ये quantitative relationship है। 1 mole of hydrogen reacts with 1 mole of chlorine to produce 2 moles of HCl, 100% 2 moles of HCl. इसका 1 मोल, इसका 1 मोल है, उसके 2 मोल्स ही तैयार होने हैं। ये रिएक्शन बताता है। अगर हम उसे मास के फॉर्मेट में लेते हैं, तो मास हम लोग जनरली ग्राम में प्रेजेंट करेंगे, तो हो सकता है कि 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन reacts with 1 ग्राम of chlorine to produce 2 ग्राम of HCl, ऐसे भी पढ़ा जा सकता है। या फिर 1 वॉल्यूम, अभी वॉल्यूम की यूनिट्स क्या है? वॉल्यूम की यूनिट्स है लीटर, सेंटीमीटर क्यूब, लाइक दैट। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि 1 liter of hydrogen reacts with 1 liter of chlorine to produce 2 liters of HCl. So these are the stoichiometric coefficient. They can be expressed in moles, they can be expressed in mass, they can be expressed in volume form. इस फॉर्मेट में एक्सप्रेस कर सकते हैं। This is called stoichiometry, and there are many numericals which are based in the stoichiometry. खास करके मैं आपको बता दूं, जेई नीट के अंदर तुम्हें से जो बच्चे जेई और नीट अप्लाई करना चाहते हैं, सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल्स यूनिटरी मेथड से सॉल्व करने हैं, और उसके अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिनको ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह समझेगा, इसके अंदर क्या कहते हैं न्यूमेरिकल्स, और जेई नीट के अंदर भी आपको थोड़ी सी आसानी फील होगी विद दिस स्टोइचोमेट्री। यूनिटरी मेथड में क्या होता है, अभी देखिए मैं इसी एग्जांपल को थोड़ा सा और एक्सप्लोर करता हूं, और थोड़ा एक्सप्लोर करता हूं। अगर मानो मैं इसके 2 मोल्स लेता हूं, इस क्लोरीन के 2 मोल्स लेता हूं, तो इसके कितने तैयार हो जाएंगे? इट विल बी अ 4। द रीजन बिहाइंड दैट, ये रेशो बताता है कि 1 1 होगा तो ये 2 बनता है, मतलब एग्जैक्टली डबल बनता है। तो यहाँ पे 2 2 होगा तो इसका डबल एग्जैक्टली 4 होगा। सो दिस इज द रेशो, दिस इज द रेशो। सो ये इसी रेशो में रिएक्ट होने वाले हैं, इसी रेशो में रिएक्ट, इसी फॉर्मेट में रिएक्ट होने वाले हैं। एंड दैट्स व्हाई इसके 2 तो 4 बनेंगे। मैं अगर इसके 3 लेता हूं, 3 3 6 बनेगा। मैं इसके 5 लेता हूं, 5 5 10 बनेगा, like that. So this is the ratio in which they actually react, and this is called as stoichiometry. So stoichiometry has the numericals which are based on number of moles format. These numericals can be based on mass to mass format, or mass to volume format, and volume to volume format. मतलब क्या है? How much number of moles of reactant react to produce how much moles of product? ये moles के format.
how much mass of reactant react to produce how much mass of product, मतलब how much gram of reactant produces how much grams of product, या फिर how much gram of reactant produces how much volume of product, और तीसरा how much volume of reactant produces how much volume of product. These are the 3-4 types of numericals how they can ask based on this one. This is also listed in the textbook very well. Clear? But this is qualitative stoichiometry. अभी स्टोचियोमेट्री के आधार पर बेस्ड कैलकुलेशंस करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, कुछ नियम होते हैं, और ये रूल्स हमें पता होना जरूरी है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. दीस आर आल्सो लिस्टेड इन द बुक वेरी वेल. अब देखिएगा कि स्टोचियोमेट्री के लिए सबसे पहला बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखना बहुत जरूरी है. In order to calculate, in order to have the calculations based on the stoichiometry, we should have balanced chemical equations. तो कोई भी equations balanced chemical equation लिखना पड़ेगा, ये जरूरी है, उसके अंदर रूल है. नेक्स्ट, number of moles. उसके आगे जो stoichiometric coefficient है, this stoichiometric coefficient always represents number of moles or maybe mass or maybe volume. किस फॉर्मेट में दिया है उसके हिसाब से आपको लेना है, like that. So this is also very important one. And then how much mass react of the reactant to produce how much mass of the product. This is the cross multiplication, that is also called unitary theory. By applying this unitary theory, we can calculate this one. जैसे कि हम लोग बचपन से देखते आए हैं कि अगर एक बंदा एक रोटी खाता है तो चार बंदे कितने रोटी खाएंगे? सिंपल सा, चार बंदे चार रोटी खाएंगे. इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहते हैं, है ना? उसी तरह दिस इज सिंपली कॉल्ड एज यूनिटरी थ्योरी, और वो अगर अप्लाई करते हैं तो स्टोइचियोमेट्रिक केमिस्ट्री के बेस कई सारे न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करते हैं. तो व्हाट इज स्टोइचियोमेट्री? Stoichiometry is a branch of chemistry which deals with quantitative relationship between reactants and product. And here in stoichiometry, whatever the stoichiometric coefficient written before the reactants and product, that represents the stoichiometric coefficient, and that stoichiometric coefficient represents number of moles or maybe mass or maybe volume. वे mass के जो भी units होंगे, किलोग्राम, ग्राम, वो हो सकते हैं. Volume के जो भी units होंगे, लीटर, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब वगैरह, ये वो होंगे, जो भी होंगे वो होंगे, डेसीमीटर क्यूब, लाइक दैट, ये होते हैं. सो अकॉर्डिंगली ये हमारे सामने इसके हिसाब से आ जाता है. क्लियर ऑफ यू? सो दैट विल बी हियर इन दिस फॉर्मेट, और ये उसी तरीके से हमारे सामने रहेगा. स्टोइचियोमेट्री, और स्टोइचियोमेट्री सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? वी हैव टू हैव अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. अगर बैलेंस केमिकल इक्वेशन नहीं है तो उसका स्टोइचियोमेट्री नहीं आता है. उसका एक दूसरा भी एग्जांपल देना चाहूंगा. देखिए, आप लोग जानते हो N2 plus H2 gives you twice NH3, अमोनिया. NH3 is अमोनिया. अभी हम ऐसे मानते हैं कि दिस इज द अमोनिया, NH3. अमोनिया तैयार करना है तो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन चाहिए, बट हाइड्रोजन कितने चाहिए, नाइट्रोजन कितने चाहिए? दिस इज द क्वांटिटी रिलेशनशिप. एंड कौन कौन चाहिए, दिस इज क्वालिटी. तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन लेके हम लोग अमोनिया तैयार कर सकते हैं. तो N2 plus thrice H2 जब तक नहीं लिखते तब तक अमोनिया तैयार नहीं होता. आप देखिए, नाइट्रोजन के यहाँ पे एटम दिखते हैं 2, इधर 2 दिखते हैं. हाइड्रोजन के 3 to the 6, 3 to the 6, यहाँ पे 3 to the 6 दिखते हैं. तो बैलेंस. तो दिस इज कॉल्ड एज बैलेंस केमिकल. अगर मैं यहाँ से 2 हटा देता हूँ, दिस इज नॉट द बैलेंस. देन दिस इज नॉट द बैलेंस. तो रिएक्शन लिखने के तरीके हैं अपने, और उस तरीके से करना पड़ेगा. और स्टोइचियोमेट्री के साथ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है. एवरीवन शुड नो in organic chemistry or in chemistry we should have the balanced chemical equations. There are some certain exceptions जो हम कर सकते हैं, लेकिन mainly most of the reactions has to be written in a balanced chemical equation format. Hope so everyone got it. This is called as stoichiometry. Clear? Now let's come to the next concept called as limiting reagent. देख लेना, ये चैप्टर की ब्यूटी और खासियत यही है. I am talking about beauty of this chapter. Limiting reagent. Limiting reagent. ओके, ये चैप्टर की ब्यूटी और खासियत यही है. व्हाट आई लाइक दैट इस चैप्टर के अंदर कोई ऐसा फ्लो नहीं है, अलग अलग कॉन्सेप्ट है और हर अपने हिसाब से मस्त कॉन्सेप्ट है. सो जैसा हमारा स्टोइचियोमेट्री था उसी तरीके से हमारे पास अभी आता है लिमिटिंग रिएजेंट नाम की आता है. बहुत इंटरेस्टिंग है लिमिटिंग रिएजेंट, बहुत इंटरेस्टिंग. आप मानिए आप स्कूल से आते थे, अभी तो 6-7 महीने से ऑलमोस्ट हम लोग 3-4 महीने से तो कंप्लीटली हम लोग घर में स्टक हो चुके हैं. लेकिन मानो आप स्कूल जाते थे, स्कूल में लिमिटेड टिफिन लेके गए और इवनिंग को हम लोग स्कूल से घर आए, और घर करने के बाद हमें भूख तो लगी है, खाना तो खाना है, लेकिन घर में अगर देखते हैं तो हम लोग एक ही रोटी है और हमें भूख तो ज्यादा लगी. भूख तो ज्यादा लगी ना, आपके घर में अभी एक ही रोटी अवेलेबल है, तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले एक रोटी खा लेंगे, फिर अदर कोई सोर्सेस से क्या देखेंगे, दूसरा कोई खाने के आइटम है तो वो खा सकते हैं हम लोग. बट लिमिट तो आ गया है, एक अवेलेबल था तो एक खाना है, या फिर 2-3 घंटे के लिए और वेट करना, या फिर दूसरा कुछ तो बाहर से हायर करना पड़ेगा. मतलब भले ही आपकी भूख ज्यादा थी, आपको ज्यादा खाना खाना था, लेकिन लिमिट आ गया क्योंकि आपके पास वो अवेलेबल नहीं है. उसके उल्टा होता है, कभी कभी आप स्कूल से घर आए और आपको भूख लगी है, बहुत बड़े जोर की भूख लगी है, तो आपको बड़ी जोर से 2 रोटी खानी है आपको, लेकिन आपके घर में 5 रोटी अभी अवेलेबल है. तो ऐसा तो नहीं होगा ना 5 की 5 खा लेंगे.
आपकी कैपेसिटी 2 की है तो आप 2 ही खाएंगे, तो 3 वहां पे बची रहेगी, तो आपका लिमिट आ गया अभी, क्योंकि वहां पे रोटी तो एक्सेस में है, लेकिन आपका लिमिट तो आ गया, यू बिकम अ लिमिटिंग रेंज, क्योंकि आप 2 ही खा सकते हो, आपने 2 खा लिए। पहले केस में क्या था कि आपको 2 रोटी चाहिए था लेकिन घर में एक ही अवेलेबल था, तो सोर्सेस के लिमिटेशन आ गए। दूसरे केस में क्या था कि आप पूरा खा गए, आपका जितना कैपेसिटी था, अभी आपका लिमिट आ गया, सोर्सेस में और भी ज्यादा प्रेशर। दिस इज व्हाट वी कैन से लिमिटिंग रीजन लाइक दैट। सेम एग्जांपल के साथ मैं एक्सप्लेन करता हूँ, आपकी बुक में अलग अलग एग्जांपल्स है, और आई वोंट स्टक टू द बुक, याद रखिएगा, आई वोंट स्टक टू द बुक, आई विल डिलीवर ऑल द कंटेंट व्हिच इज गिवन इन द बुक, एग्जांपल्स में आई गिव डिफरेंट। ओके, सो लेट्स हैव द सेम एग्जांपल अगेन हियर, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन react to produce hydrogen chloride, simple example है इसमें। okay, hydrogen reacts with chlorine to form HCl, तो HCl, this is the reactor, और इसका सबसे पहले बैलेंस केमिकल लिखना पड़ेगा, बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना पड़ेगा, जो मैंने ऑलरेडी लिखा है, H2 plus Cl2 produces twice HCl, this is a balanced chemical equation already we have written। स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेशियो ये बताता है 1:1:2, 1:1:2, ये उसका स्टोइचियोमेट्रिक रेशियो बताता है, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेशियो बताता है 1:1:2, ये रेशियो इसके अंदर बताता है। जैसे हम लोग इस रेशियो को थोड़ा सा अलग तरीके से लेते हैं, उसको वॉल्यूम में कन्वर्ट करते हैं, तो आप देखिए ना कैसा होता है कि वॉल्यूम में लेता है, तो ये 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद 1 वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन टू प्रोड्यूस 2 वॉल्यूम्स ऑफ HCl। ओके, ये है, तो 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट्स टू प्रोड्यूस 1 वॉल्यूम ऑफ रिएक्ट विद 1 वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन टू प्रोड्यूस 2 वॉल्यूम्स ऑफ HCl। अभी वॉल्यूम का यूनिट लीटर है, तो हम लोग लीटर में एक्सप्रेस करते हैं, तो 1 लीटर ऑफ हाइड्रोजन reacts with 1 liter of chlorine to produce 2 liters of HCl। अभी लीटर जरा आपका नजदीकी मामला है, लीटर हम जानते हैं, डेली रूटीन लाइफ में हम लोग लीटर के साथ जुड़े हुए हैं, तो आप देखिएगा यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 liter of hydrogen reacts with 1 liter of chlorine to produce 2 liters of HCl, 2 liters of HCl, ऐसा होता है, ठीक है। तो क्लियर, 1 लीटर हाइड्रोजन 1 लीटर क्लोरीन के साथ रिएक्ट होता है, 2 liters of HCl तैयार होता है, ये उसका रेशियो रिलेशन। अगर हम ऐसा करते हैं, आई विल टेक 1 लीटर ऑफ हाइड्रोजन विल टेक 2 liters ऑफ क्लोरीन, अभी HCl का कितना तैयार होगा, ये क्वेश्चन है, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है, और जो हमने स्टोइचियोमेट्री के अंदर देखा है, स्टोइचियोकेमिस्ट्री के अंदर देखा है, वी हैव टेकन 1 लीटर ऑफ हाइड्रोजन और क्लोरीन के हमारे पास 2 liters है, HCl के कितने बनेंगे, इज देयर एनीवन गेस फ्रॉम योर साइड, एनी गेस, एनीबॉडी, कम ऑन, कितना तैयार हो सकता है HCl का? Sir, 2 liters only. 2 liters only. Who is this? Sir, Atharva, sorry. Athar, very good, Athar. It's 2 liter only. The reason behind that, 1:1:2 is the ratio which has to be maintained very well. Reason ये है, हम जब 1 लीटर हाइड्रोजन लेते हैं तो उसके साथ 1 लीटर क्लोरीन ही रिएक्ट हो सकता है, तब जाके उसके 2 liters तैयार होते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन का 1 लीटर है, क्लोरीन के भले ही 2 लीटर है, बट हाइड्रोजन के 1 लीटर के साथ क्लोरीन का 1 ही लीटर रिएक्ट होना है। अभी हमारे पास 2 लीटर है, लेकिन वो रिएक्ट नहीं होगा, उसमें से 1 ही लीटर रिएक्ट होगा। सो इसके केस में 1 लीटर इज इन एक्सेस, ये एक्सेस में रहेगा, क्योंकि भले वहां पे 2 लीटर है, लेकिन हम रिएक्ट नहीं कर सकते। जैसे मैंने बताया, घर में 5 रोटी हम 2 ही खा सकते हैं, तो 3 रोटी एक्सेस में है, आपका लिमिट आ गया। हाइड्रोजन के साथ 1 लीटर हाइड्रोजन के साथ इसका 1 लीटर ही रिएक्ट होना है, ऊपर का डेटा ये बताता है। तो इसके भले 2 लीटर हो या 10 लीटर हो, इसमें से सिर्फ 1 लीटर ही इसके साथ रिएक्ट होने वाला है, और बाकी एक्सेस में रहेगा, और इसके एक के साथ इसका 1 बनेगा, तो इसका डबल नंबर यहाँ पे, डबल द अमाउंट, दैट इज 2 लीटर बनने वाला है, एंड दैट्स व्हाई दिस इज एक्सेस। अभी ऐसा तो नहीं बोल सकते क्लोरीन अभी एक्सेस में, अभी क्या करे, रिएक्शन इज स्टॉप, because hydrogen is over now. In this case, this hydrogen must be a limiting reagent. हमारा टॉपिक यही था, what is the limiting reagent? तो hydrogen must be a limiting reagent because chlorine is still there, chlorine is in excess, but hydrogen is over, and that's why the reaction is over. Product तैयार हो चुका है 2 लीटर में. So this is called a limiting reagent because once the hydrogen is over, reaction has to stop. Though the chlorine is present in excess, reaction can't continue because there is no hydrogen to react. So hydrogen must be called as a limiting reagent. उल्टा भी केस हो सकता है, उल्टा केस करते हैं हम लोग कि we'll take 2 liters of hydrogen and we'll take 1 liter of chlorine
यहाँ पे 2 लीटर से तैयार होगा, नो डाउट एट ऑल। अभी इसके अंदर कौन लिमिटिंग रिएजेंट है? क्लोरीन। क्लोरीन मस्ट बी अ लिमिटिंग रिएजेंट बिकॉज क्लोरीन 1 लीटर है। 1 लीटर क्लोरीन के साथ 1 लीटर हाइड्रोजन रिएक्ट होने वाला है। दिस इज लिमिटिंग रिएजेंट, दिस इज एक्सेस रिएजेंट, दिस इज एक्सेस रिएजेंट। This is the concept of we can write here for the limiting reagent and for the excess reagent. All of you getting it? So what we have here, this is the limiting reagent, this is the excess reagent. The substance, the reactant which is taken in larger amount must be called as the excess reagent. And the substance which is taken in smaller amount and with which the reaction gets over. The moment that substance is over, reaction gets over. This must be called as you can say limiting reagent. Hope so everyone getting it? So this is the limiting reagent. ये हम लोग न्यूमेरिकल के फॉर्मेट में भी बोल सकते हैं। आपकी बुक में कई काफी सारे एग्जांपल्स है, काफी सारे एक्सप्लोरेशंस है। बट किसी भी रिएक्शन के अंदर जो सब्सटेंस कम मात्रा में लिया जाता है और जैसे वो खत्म होता है रिएक्शन को रुकना पड़ता है बिकॉज वो खत्म हुआ तो आगे रिएक्शन नहीं बढ़ सकता एंड उसी को हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट ऐसे कहते हैं। सो दिस इज द लिमिटिंग रिएजेंट कॉन्सेप्ट ऑफ वी कैन से दिस इज आल्सो कॉल्ड एज कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेस रिएजेंट एंड लिमिटिंग रिएजेंट। क्लियर? कोई डाउट इसके अंदर? so that's what we have. This is a very important concept what we are seeing here. Now the most important part is that the last concluding part of this chapter is arrived now, and we have to discuss the different ways to express the concentration of solutions. See, इस चैप्टर के अंदर यही खासियत है, अलग अलग कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करते हैं और सबकी अपनी खासियत है। Now we are here with the concluding topic of this chapter called as different ways to express the concentration of solution. For example, हमारे घर के अंदर हम चाय बनाते हैं। अभी हमें से बहुत सारे पुणे से हम लोग पुणे के हैं और काफी सारा इधर अदर महाराष्ट्र से भी बच्चे हमारे साथ यहाँ पे कनेक्टेड है। हम लोग रूरल एरिया की बात करते हैं, रूरल एरिया में जरा ज्यादा मीठा चाय पिया जाता है और सिटी लाइट में जरा चाय कम पिया जाता है। डायबिटीज का डर होता है ना लोगों को, है ना, या फिर कैलोरीज के केयर भी करते हैं। तुम्हारा तो जनरेशन है कैलोरीज की बहुत केयर करता है। फिटनेस के लिए हम लोग ज्यादा शुगर नहीं लेते, कैलोरीज की बात करते हैं, है ना, करनी भी चाहिए, क्यों नहीं, बिकॉज ज्यादा शुगर वैसे भी हानिकारक ही है। सो लेकिन देखेंगे रूरल एरिया के लोग ज्यादा चाय पीते हैं, ज्यादा मीठा चाय पीते हैं और सिटी लाइट लोग जरा थोड़ा सा कम। अभी एक्सेप्शनली भी हो सकता है, कुछ लोग ऐसे सिटी में भी होंगे कि बहुत ज्यादा मीठा चाय पीते हैं, वो अलग बात है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एक्सेप्शंस, आई एम मेकिंग अ जनरलाइज्ड स्टेटमेंट। तो चाय के अंदर देखिए ना, मीठा और फेंट ये कैसे एक्सप्रेस करेंगे? कुछ तो होगा तरीका एक्सप्रेस करने का, सिर्फ मीठा और फेंट चाय नहीं चलेगा। हम लेबोरेटरी में जाते हैं, लेबोरेटरी में डाइल्यूट HCl और कॉन्सनट्रेटेड HCl ऐसा बोलते हैं हम लोग, उससे काम नहीं चलेगा। ओनली डाइल्यूट HCl और कॉन्सनट्रेटेड HCl, उससे कैसे काम चलेगा? कुछ तो तरीका होना चाहिए एक्सप्रेस करने का, और इसीलिए एक्सप्रेस करने का तरीका होता है। हम लोग मेडिसिन लेते हैं, हमारे मेडिसिन के अंदर बताया जाता है कि इस मेडिसिन के अंदर, कभी केयरफुली अगर हम पढ़ते हैं, साइंस के स्टूडेंट है, तो उसके ऊपर लिखा जाता है कि इस मेडिसिन के अंदर ये सब्सटेंस इतनी मात्रा में, ये सब्सटेंस इतनी मात्रा में। इवन हम चिप्स खाते हैं, कई सारे अलग अलग टाइप के चिप्स खाते हैं, फूड आइटम्स खाते हैं आप लोग, है ना, तो ये सारे लेज, बालाजी के चिप्स वगैरह वगैरह, क्या क्या नाम उनके सारे चिप्स आप लेते हो, कुरकुरा वगैरह, उसके ऊपर भी अगर आप ध्यान से पढ़ते हो तो उसके ऊपर लिखा होता है कि दिस पैकेट कंसिस्ट ऑफ हाउ मच कार्बोहाइड्रेट्स, हाउ मच प्रोटीन्स, हाउ मच ऑयल्स, हाउ मच फैट्स, हाउ मच एडिटिव्स, एवरीथिंग इज रिटन ऑन दैट। This is the way to express the concentration what is present in this one. उसके अंदर कितना concentration को एक्सप्रेस करने का तरीका है। बट साइंस में हमें उसे और अच्छी तरीके से पढ़ना पड़ता है कि how we are going to express the concentrations of given substances, and there are different ways. Number one, percentage by weight is one of the way to express the concentration of solution. Percentage by weight, mole fractions, molarity, normality, formality, ppm. These are the different ways how we can express the concentration of the solution. हम डॉक्टर के पास चले जाते हैं, डॉक्टर हमें सलाइन लिखे तो उसके ऊपर भी लिखा जाता है कि 10% डेक्स्ट्रोज सॉल्यूशन, 15% डेक्स्ट्रोज सॉल्यूशन, 42% डेक्स्ट्रोज सॉल्यूशन, ऐसा लिखा जाता है। These are the ways. तो कल के लेक्चर में we'll have a discussion regarding this one, that is what are the ways to express the concentrations, and we'll conclude the chapter tomorrow with the doubt which is been asked by the author related with empirical formula, the steps involved in the empirical formula, with one of the example of this one. Till then, bye bye, see you tomorrow. Thank you very much. लेकिन कल थोड़ा read करके आएगा. Thank you very much.